بہت پرانے زمانے کی بات ہے جب گاؤں چھوٹے ہوتے تھے، لوگ سادہ زندگی گزارتے تھے اور ہر پیشہ اپنی پہچان رکھتا تھا۔ انہی دنوں ایک دور افتادہ گاؤں میں ایک غریب مگر محنتی لوہار رہا کرتا تھا۔ اس کا کام لوہے کو آگ میں تپا کر اوزار بنانا تھا۔ دن رات وہ بھٹی کے سامنے کھڑا رہتا، پسینہ بہاتا اور اپنے ہاتھوں کی محنت سے 2 وقت کی روٹی کماتا۔ اس کی زندگی سادہ تھی، خواہشیں محدود تھیں اور دل میں صرف ایک ہی آرزو تھی کہ اس کا بیٹا ایک اچھا انسان بنے، باعزت زندگی گزارے اور کسی کے لیے نقصان کا باعث نہ بنے۔ لوہار کا بیٹا جوان ہو چکا تھا، مگر اس کی فطرت میں ضد، غصہ اور بے صبری بھری ہوئی تھی۔ جہاں دوسرے لڑکے اپنے باپ کا ہاتھ بٹاتے، وہاں یہ لڑکا ہمیشہ شکوے کرتا، اپنے نصیب کو کوستا اور خود کو کم تر سمجھنے کے بجائے دوسروں سے نفرت کرنے لگا تھا۔ اس کے دل میں دولت، طاقت اور روب جمانے کی خواہش پل رہی تھی، مگر محنت کا حوصلہ نہیں تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ سب اس سے ڈریں، سب اس کا کہا مانے، چاہے اس کے لیے کسی کو نقصان ہی کیوں نہ پہنچے۔ ایک دن کی بات ہے، لوہار حسب معمول اپنی بھٹی کے پاس بیٹھا لوہے کو آگ میں تپا رہا تھا۔ آگ کے شعلے بھڑک رہے تھی اور ہتھوڑے کی آواز پورے صحن میں گونج رہی تھی۔ اسی وقت اس کا بیٹا تیز قدموں سے آیا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی، چہرے پر سختی اور لہجے میں حکم۔ اس نے آتے ہی کہا، ابا، میرے لیے ایک چھری بنا دو، ایسی چھری جو بہت تیز ہو، جس کی دھار دیکھ کر سامنے والا کانپ جائے۔ لوہار نے چونک کر بیٹے کی طرف دیکھا۔ اس کے ہاتھ رک گئے، ہتھوڑا نیچے رکھ دیا اور نرمی سے بولا، بیٹا، چھری کھیل تماشے کی چیز نہیں ہوتی، بتاؤ تمہیں چھری کس لیے چاہیے؟ بیٹا نظریں چراتے ہوئے بولا، بس مجھے چاہیے، زیادہ سوال مت کرو۔ لوہار کا دل بے چین ہو گیا۔ اس نے دوبارہ سمجھانے کی کوشش کی، بیٹا، ہتھیار ہمیشہ نقصان کا سبب بنتے ہیں، اگر نیت صاف نہ ہو تو یہی ہتھیار انسان کو تباہ کر دیتے ہیں۔ مگر بیٹا کہاں ماننے والا تھا، اس کی ضد بڑھتی جا رہی تھی۔ اس نے آواز بلند کی، قدم آگے بڑھایا اور سخت لہجے میں بولا، ابا، اگر تم نے میرے لیے چھری نہ بنائی تو میں جانتا ہوں تم سے کیسے بنوانی ہے۔ یہ الفاظ لوہار کے دل پر تیر کی طرح لگے۔ اس نے بیٹے کی آنکھوں میں دیکھا تو اسے رحم، احترام اور محبت کی کوئی جھلک نظر نہ آئی، بلکہ وہاں غصہ، تکبر اور بے رحمی صاف جھلک رہی تھی۔ وہ لمحہ لوہار کے لیے انتہائی تکلیف دہ تھا۔ اسے احساس ہوا کہ اس نے اپنے بیٹے کی تربیت میں کہیں نہ کہیں کمی ضرور کی ہے۔ بیٹے کی ضد اتنی شدید تھی کہ آخرکار مجبور ہو کر لوہار نے لوہے کا ایک ٹکڑا آگ میں ڈالا، بھٹی تیز کی اور ہتھوڑا اٹھا لیا۔ ہر وار کے ساتھ اس کا دل کانپتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ جو چھری بنا رہا ہے وہ کسی بڑے فتنے کی بنیاد بن سکتی ہے، مگر باپ کا دل کمزور ہو جاتا ہے، خاص طور پر جب اولاد سامنے کھڑی ہو۔ کچھ ہی دیر میں ایک نہایت تیز دھار چھری تیار ہو گئی۔ لوہار نے کانپتے ہاتھوں سے وہ چھری بیٹے کو تھما دی۔ جیسے ہی چھری بیٹے کے ہاتھ میں آئی، اس کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ خود کو طاقتور محسوس کرنے لگا، جیسے اب کوئی اسے روک نہیں سکتا۔ اس نے چھری کو ہوا میں گھمایا اور اکڑ کر بولا، ابا، اب سنو، تمہیں کیا کرنا ہے۔ کل ہی بادشاہ کے محل جانا ہے اور میرے لیے شہزادی کا رشتہ مانگنا ہے۔ اگر تم نے انکار کیا، بہانے بنائے، تو یاد رکھنا یہ چھری تم پر ہی آزماؤں گا۔ یہ سن کر لوہار کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے، دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ ایک باپ کے لیے اس سے بڑا صدمہ کیا ہو سکتا تھا کہ اس کا اپنا بیٹا اسے جان سے مارنے کی دھمکی دے۔ اس لمحے لوہار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ اس کی زندگی اسے اس موڑ پر لا کھڑا کرے گی۔ اسی لمحے سے اس کہانی کا اصل سفر شروع ہوتا ہے۔ ایک غریب لوہار، ایک ضدی اور نافرمان بیٹا، ایک خطرناک چھری اور ایک ایسی خواہش جو آنے والے وقت میں آزمائشوں، جادو، عقل اور قسمت کے انوکھے کھیل کو جنم دینے والی تھی۔ چھری بننے کے بعد لوہار کی زندگی جیسے ایک ہی لمحے میں بدل گئی۔ وہ چھری نہیں تھی، بلکہ ایک خوفناک انجام کا پہلا قدم تھی۔ اس رات لوہار سو نہ سکا۔ کبھی بیٹے کا چہرہ آنکھوں کے سامنے آ جاتا، کبھی وہ چھری جو اس کے ہاتھوں نے خود بنائی تھی۔ دل میں ایک ہی سوال گونج رہا تھا، کیا واقعی میرا بیٹا اس حد تک گر چکا ہے کہ اپنے باپ کا خون بہا دے؟ صبح کی پہلی اذان کے ساتھ ہی لوہار اٹھ بیٹھا۔ اس کا جسم تھکا ہوا تھا، مگر دل اس سے بھی زیادہ بوجھل۔
बेटा सोकर उठा तो उसके चेहरे पर गुरूर था, जैसे वो पहले ही कोई जंग जीत चुका हो। इसने छुरी को कमर से लगाया और बाप की तरफ देखकर बोला, अब्बा, आज ही महल जाना है, याद रखना कोई बहाना नहीं। लोहार ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, बादशाह बहुत बड़ा आदमी है। हम जैसे गरीब लोग अगर उसके सामने ऐसी बात करेंगे तो वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। बेटा तंजिया हंसी हंसा, अगर बादशाह मारेगा तो एक ही बार मारेगा, मगर अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं तुम्हें अभी मार दूंगा। इंतखाब तुम्हारा है। ये सुनकर लोहार के दिल में जैसे किसी ने खंजर घोंप दिया हो। एक तरफ बादशाह का खौफ, दूसरी तरफ अपने ही बेटे की जानलेवा धमकी। वो समझ नहीं पा रहा था कि किस समत जाए। इसके लिए दोनों रास्ते मौत की तरफ जाते दिखाई दे रहे थे। इसने दिल ही दिल में कहा, ए अल्लाह, ये कैसी आजमाइश है। कुछ देर बाद लोहार ने फैसला कर लिया। इसने सोचा, अगर मरना ही है तो बादशाह के दरबार में मर जाना बेहतर है। कम अज कम लोग ये तो कहेंगे कि एक लोहार बादशाह से रिश्ता मांगने गया था, ना कि ये कि वो अपने ही बेटे के हाथों मारा गया। ये सोचकर इसने हिम्मत जमा की। पुराना सा लिबास पहना, सर पर कपड़ा रखा और दिल में हजारों खदशात लिए महल की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में लोग इसे देखकर हैरान थे। कोई पूछता, कहां जा रहे हो लोहार? वो बस इतना कहता, अपनी तकदीर का फैसला करने। बादशाह का महल शहर के बीचों बीच था। ऊंची दीवारें, मजबूत दरवाजे, पहरेदार और अंदर जाने वालों पर कड़ी नजर। लोहार जैसे ही दरवाजे के करीब पहुंचा, सिपाहियों ने इसे रोक लिया। कौन हो और क्या काम है? लोहार ने कांपती आवाज में जवाब दिया, बादशाह सलामत से एक अर्ज करनी है। सिपाहियों ने इसके फटे पुराने कपड़ों को देखा और हिकारत से हंसे, मगर किसी तरह इसे दरबार में दाखिल होने की इजाजत दे दी गई। दरबार सजा हुआ था। बादशाह तख्त पर बैठा था, वज़रा दाएं बाएं खड़े थे और दरबार में खामोशी छाई हुई थी। लोहार ने आगे बढ़कर सर झुकाया और लरसती हुई आवाज में कहा, जहां पना, मैं एक गरीब लोहार हूं। मैं अपने बेटे के लिए आपकी शहजादी का रिश्ता मांगने आया हूं। ये सुनते ही दरबार में खलबली मच गई। कुछ लोग हंस पड़े, कुछ ने गुस्से से लोहार को देखा। बादशाह का चेहरा सुर्ख हो गया। इसने तख्त से झुककर गजबनाक आवाज में कहा, क्या कहा तुमने? एक मामूली लोहार मेरी बेटी का रिश्ता मांग रहा है। तुम्हारी इतनी जुर्रत? बादशाह का हाथ तलवार की तरफ बढ़ा। लगता था कि वो इसी वक्त लोहार का सर तन से जुदा कर देगा। लोहार की टांगें कांपने लगें, मगर वो खामोश खड़ा रहा, क्योंकि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। इसी लम्हे बादशाह का वजीर आगे बढ़ा। वो एक समझदार और चालाक आदमी था। इसने आहिस्ता से बादशाह के कान में कुछ कहा। बादशाह ने चंद लम्हे सोचा, फिर तलवार नीचे रख दी। दरबार में खामोशी छा गई। बादशाह ने गहरी आवाज में कहा, अच्छा लोहार, हम तुम्हारी गुस्ताखी को अभी नजरअंदाज करते हैं, लेकिन तुम्हारी ये ख्वाहिश यूं पूरी नहीं हो सकती। हम एक शर्त रखते हैं। अगर तुम्हारा बेटा वो शर्त पूरी कर दे तो हम रिश्ता कबूल करेंगे। लोहार ने जल्दी से पूछा, जहां पना, शर्त क्या है? बादशाह बोला, तुम्हारा बेटा कोई ऐसा काम करके दिखाए जो ना हमने कभी देखा हो, ना सुना हो और ना किसी ने इससे पहले किया हो। ये शर्त सुनकर लोहार के दिल में उम्मीद की एक मध्यम सी किरण जागी। कम अज कम जान तो बच गई थी। इसने सर झुकाकर कहा, हमें शर्त मंजूर है जहां पना। यूं लोहार जान बचाकर दरबार से निकला, मगर एक नई और बड़ी आजमाइश इसके सामने खड़ी थी। अब सवाल यह था कि क्या वाकई एक जिद्दी और नाफरमान लड़का ऐसी नामुमकिन शर्त पूरी कर सकेगा? यहीं से कहानी एक नए मोड़ में दाखिल होती है। बादशाह ने लोहार की बात सुनी तो बहुत गुस्सा आया। दिल चाहा फौरन इसे सजा दे दे, मगर वजीर ने समझाया, साहिब सल्तनत, अगर इसे मार दिया तो लोग मजाक उड़ाएंगे और हम खफा नजर आएंगे। बेहतरीन हल यह है कि इसे एक नामुमकिन शर्त दी जाए। बादशाह ने फैसला किया, लोहार का बेटा कोई ऐसा काम करे जो आज तक न किसी ने देखा हो और न सुना हो। लोहार ने यह शर्त सुनकर हैरत और खौफ का मुरक्कब महसूस किया। वापस जाकर बेटे को बताना भी आसान काम नहीं था।
मगर जान बचाने के लिए वो घर रवाना हुआ। रास्ते में लोहार सोच रहा था कि कैसे बेटा ऐसी शर्त पूरी करेगा। गांव के लोग, रास्ते की खिड़कियां, सब कुछ एक खतरनाक खेल लग रहा था। लोहार दिल ही दिल में दुआ कर रहा था कि बेटा जिंदा रहे और अक्ल से काम ले। इस दौरान बेटा बेसब्र और पुरजोश था। वो सोच रहा था कि किस तरह बादशाह को हैरान कर दे। छुरी का हथियार और खुद पर भरोसा इसके हौसले बढ़ा रहे थे। बादशाह की शर्त ने कहानी में नया मोड़ दिया। अब सफर खतरा और जादू की दुनिया शुरू होने वाली थी। ये वो लम्हा था जब असल आजमाइश का आगाज हुआ, जहां अक्ल, हिम्मत और जादूगरनी की मदद ही कामयाबी की कुंजी बनेगी। लोहार और उसका बेटा गांव छोड़कर जंगल की तरफ निकले। रास्ता लंबा और सुनसान था, दरख्तों के साए जैसे सायादार दीवारें, और हर कदम पर परिंदों की आवाजें गूंज रही थीं। बेटे की आंखों में तजस्सुस और जोश था, जबकि लोहार के दिल में खौफ और फिक्र। चंद घंटे चलने के बाद वो एक घने जंगल में पहुंचे। वहां एक अजीब मंजर देखकर दोनों की आंखें खिली की खिली रह गईं। जमीन पर पीले फूल बिखरे हुए थे और एक आदमी अपने पांव को आग में डाले बैठा था। आग के शोले इसके पीर से उठ रहे थे, मगर वो बेखौफ खाने बना रहा था। इसके आग में चूल्हे पर तली हुई चीजें, पकौड़े, इसके सामने जादुई रोशनी की तरह चमक रहे थे और वो पकौड़े खा रहा था। लोहार और बेटा एक दूसरे को देखकर कहने लगे, ये काम तो बादशाह ने कभी ना देखा होगा। शायद यही रास्ता है जो शर्त पूरी करने में मदद दे सकता है। लोहार ने हिम्मत करके आदमी से मुखातिब हुआ, अल्लाह के बंदे, क्या आप मेरे बेटे को अपना शागिर्द बना सकते हैं ताकि वो भी ये काम सीखे? आदमी ने आहिस्ता से कहा, आगे जाओ, मेरा उस्ताद तुम्हारे बेटे को सिखाएगा। मैं शागिर्दी की इजाजत नहीं दे सकता। लोहार और बेटा आगे बढ़ते रहे। चंद मील के बाद एक और अजीब आदमी उनके सामने आया। वो भी अपने पांव को आग में डाले बैठा था, मगर उसकी कड़ाही में तली हुई जलेबियां थीं। बेटे ने फौरन कहा, ये तो और भी मुश्किल है। ये काम बादशाह ने कभी ना देखा होगा, ना सुना होगा। लोहार ने वो शख्स से कहा, अल्लाह के बंदे, मेरे बेटे को अब शागिर्द बना ले, इसे भी ये फिन सिखा दें। आदमी ने एक बार फिर हल्की आवाज में कहा, आगे जाओ, मेरा उस्ताद तुम्हारे बेटे को सिखाएगा। मैं इजाजत नहीं दे सकता। बेटे का हौसला बढ़ रहा था। हर कदम के साथ वो समझ रहा था कि यही तरीका है शर्त पूरी करने का। वो गैर मामूली, खतरनाक और हैरान कुन काम सीख रहा था जो ना किसी ने देखा और ना सुना। ये सफर ना सिर्फ जिस्मानी था बल्कि ज़हनी भी था। बेटे को समझ आ रही थी कि सिर्फ ताकत काफी नहीं, बल्कि होशियारी, हौसला और अक्ल की जरूरत है। जंगल की राहों में कदम रखकर वो हर खतरे का सामना करने के लिए तैयार हो रहा था। यही लम्हा इसकी पहली सच्चाई की आजमाइश थी। हर अजीब और जादुई मंजर उसके हौसले को बढ़ा रहा था। आग में पांव डालने वाले ये लोग, तली हुई खुराक और जादुई माहौल, सब कुछ इसकी तरबियत का हिस्सा बन गए। वो जान चुका था कि बादशाह की शर्त आसान नहीं है, मगर हिम्मत और अक्ल से सब मुमकिन है। यूं लोहार और बेटा जंगल की घाटियों, फैले हुए फूलों और जादुई मनाजिर से गुजरते रहे, और हर नए मंजर ने उन्हें मजीद चैलेंज देने के लिए तैयार किया। ये सफर उनके लिए महज जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी और ज़हनी भी था, जहां हर खतरा एक सबक और हर अजीब मंजर एक सबक आमोज लम्हा था। जंगल के गहरे हिस्से में लोहार और उसका बेटा एक ऐसे मकाम पर पहुंचे जहां फजा में अजीब सी खामोशी और सनसनी थी। दरख्तों के साए लंबे और डरावने लग रहे थे, और जमीन पर पत्ते ऐसे बिखरे थे जैसे किसी ने एक साल की खिज़ा यकजा कर दी हो। वहां वो देखते हैं एक बूढ़ा आदमी जो बैरी के दरख्त के नीचे बैठा था, जमीन पर फैले मीठे बैरी के फलों के दरमियान। इसके पांव आग में डाले हुए थे और चूल्हे पर एक बड़ी कड़ाही में गुड़ भरता और खाता जा रहा था। बेटे ने फौरन कहा, अब्बा, ये तो पिछले लोगों से भी ज्यादा अजीब है। ये काम बादशाह ने कभी ना देखा होगा। लोहार ने हिम्मत करके इस शख्स से कहा, अल्लाह के बंदे, मेरे बेटे को सिखा दें कि ये काम कैसे किया जाता है, इसे भी शागिर्द बनाएं। बूढ़े आदमी ने आहिस्ता से जवाब दिया, मैं शागिर्द नहीं बना सकता, आगे जाओ, मेरा उस्ताद तुम्हारे बेटे को सिखाएगा। लोहार और बेटा आगे बढ़ते हैं, मगर जल्द ही उन्हें पता चलता है कि ये जगह महज खतरनाक नहीं बल्कि जादूगर की ताकत का मरकज है।
एक कमरा सामने था और बूढ़े ने बेटे को वहां कैद करने की हिदायत दी। कमरा अंधेरे और खौफनाक था, दीवारों पर इंसानी हड्डियां बिखरी हुई थीं। लड़के की सांसें तेज हो गईं और दिल धड़कने लगा। ये वो लम्हा था जब इसे हकीकत में ये एहसास हुआ कि शर्त पूरी करना आसान नहीं होगा। बेटा जो पहले सिर्फ गुरूर और ताकत पर भरोसा करता था, अब समझ गया कि सिर्फ हथियार और ताकत से कुछ हासिल नहीं होता। अक्ल, होशियारी और हौसले की जरूरत है। कमरे में बैठकर वो सोचने लगा कि यहां से जिंदा निकलने के लिए क्या करना होगा। आंखों में खौफ मगर दिल में हिम्मत। रात भर लड़के ने सोचा, हर गोशे में खतरा देखकर दीवारों में छुपे राजों को महसूस किया। वो जानता था कि यहां कई लोग पहले जा चुके हैं और वापस नहीं आए, मगर इसने हिम्मत नहीं हारी। अगली सुबह लड़के ने दीवार के एक बड़े हड्डी के टुकड़े को उठाया और छुरी की तरह तेज दांतों वाली हड्डी से दीवार खोदना शुरू किया। दिन और रात की मेहनत के बाद दीवार में एक सुराख पैदा हुआ, इतना बड़ा कि एक इंसान गुजर सकता था। लोहार के लिए यह लम्हा दुआ करने और सब्र करने का था। बेटे की हिम्मत और जहानत ने इसे हैरान कर दिया। लड़का जो कभी जिद्दी और गुरूर में था, अब समझ गया था कि आजमाइश में सब्र और होशियारी सब कुछ है। आखिरकार सुराख के जरिए वो एक और कमरे में पहुंचा। वहां इसकी मुलाकात एक खूबसूरत और जादूगरनी लड़की से हुई, जो असल में इसी जादूगर की बेटी थी। इसने लड़के को खाना दिया, 2 साल तक जादू सिखाया और हिम्मत और अक्ल के सबक दिए। यहां से असल सफर शुरू होता है, जहां लड़के की तरबियत जादूगरनी की मदद और उसकी अक्ल इसे बादशाह की शर्त पूरी करने में कामयाब बनाती है। लड़के ने सुराख से गुजरकर एक और कमरे में कदम रखा और सामने जो मंजर देखा वो इसकी सांसें रोक देने वाला था। एक खूबसूरत जादूगरनी जिसके लंबे कबाल नर्म लहरों की तरह इसके कंधों पर पड़े हुए थे, बिस्तर पर बैठी थी। वो पुरसुकून नजर आ रही थी, मगर उसकी आंखों में चालाकी और ताकत साफ झलक रही थी। लड़का पहली बार इतनी करीब से किसी जादूगरनी को देख रहा था। पहले तो वो खौफजदा हुआ, मगर जादूगरनी ने नर्म लहजे में कहा, कोई बात नहीं, आओ यहां बैठो, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। लड़के ने हिचकिचाते हुए कदम बढ़ाया और अपनी कहानी सुनानी शुरू की। इसने बताया कि वो कौन है, क्यों यहां आया और किस शर्त को पूरा करने के लिए यह खतरनाक सफर कर रहा है। जादूगरनी ने इसे गौर से सुना और फिर कहा, मैं जानती हूं तुम्हारी नीयत साफ है। मैं तुम्हें जादू सिखाऊंगी, मगर शर्त यह है कि तुम सब्र और हौसले के साथ हर सबक सीखो। इस दिन से लड़के की तरबियत शुरू हुई। जादूगरनी ने इसे सिखाया कि किस तरह छोटे छोटे जादुई काम अंजाम दिए जा सकते हैं। पहले वो आग के शोलों से खेलना सीखता, फिर पानी और हवा की ताकत को काबू में लाता और आखिरकार अशिया को अपनी मर्जी से हरकत देना। हर सबक में सब्र और होशियारी की जरूरत थी। 2 साल तक लड़का यहां रहा। रोजाना सुबह से शाम तक तालीम हासिल करता, खाना सीखने, जादू के उसूल समझने और अपनी अक्ल को मजबूत करने में गुजारता। जादूगरनी न सिर्फ उस्ताद थी बल्कि रहनुमा भी थी। वो हर गलती पर नर्म लहजे में नसीहत करती और सही राह दिखाती। वक्त के साथ लड़का ताकतवर और होशियार हो गया। इसकी समझदारी, होशियारी और जादू में महारत देखकर लोहार भी हैरान होता। वो अब पहले के गुरूर और जिद्दी बेटे की बजाय एक समझदार और तैयार नौजवान बन चुका था। जादूगरनी ने इसे इंतबाह किया, तुम्हारे पास अब ताकत है, मगर याद रखो रास्ते में लालच और खुद गर्जी तबाही ला सकती है। हमेशा अक्ल और हिम्मत के साथ काम लो। लड़के ने यह नसीहत दिल में बिठा ली। इसने न सिर्फ जादू सीखा बल्कि ये भी समझ लिया कि ताकत के साथ जिम्मेदारी आती है। वो जान गया कि शर्त पूरी करने के लिए सिर्फ हिम्मत काफी नहीं, बल्कि होशियारी और समझदारी भी जरूरी है। 2 साल के बाद लोहार वापस आया। इसने सोचा कि शायद अब बेटे को ले जा सकता है, मगर जादूगरनी ने इसे खबरदार किया, बेटा तैयार है, मगर रास्ते में तुम दोनों को मोहतात रहना होगा। लालच में ना आओ वरना तुम गिरफ्तार हो जाओगे। ये तरबियत और रहनुमाई लड़के के लिए जिंदगी की सबसे बड़ी आजमाइश थी। इसने न सिर्फ जादू सीखा बल्कि ये भी जाना कि हर ताकत के साथ अखलाक, सब्र और होशियारी जरूरी है। इस तरह लड़का जादूगरनी के ज़ेर साया 2 साल के अरसे में एक कामिल जादूगर बन गया और अगला मरहला शुरू होने के लिए तैयार था। बादशाह की शर्त पूरी करना, खतरनाक रास्तों से गुजरना और अपने वालिद के साथ मिलकर अपनी किस्मत खुद लिखना।
2 साल की तरबियत के बाद लड़का अब मुकम्मल जादूगर बन चुका था। इसके हाथ में ताकत और अक्ल दोनों थी और दिल में हिम्मत भरी हुई थी। जादूगरनी ने लोहार को खबरदार किया था, बेटे को ले जाओ मगर रास्ते में लालच में न आओ, नहीं तो तुम पकड़े जाओगे। लोहार ने अपने बेटे को कमर पर बांधा और जंगल से बाहर निकलने के लिए तैयार हुआ। बाहर निकलते ही सब कुछ पुरसुकून और खामोश लग रहा था, मगर लड़के को मालूम था कि खतरा अभी खत्म नहीं हुआ। हर कदम पर होशियारी की जरूरत थी। रास्ते में उन्होंने एक किसान के बैल को देखा जो खेतों में हल चलाने में मसरूफ था। लड़के ने सोचा कि अगर वो बैल बन जाए और बैल बेच दे तो थोड़ी रकम हासिल की जा सकती है। इसने जादू करके खुद बैल में तब्दील कर लिया। लोहार ने बैल का रिसवा पकड़ा और किसान के पास गया। बैल ने अपनी ताकत दिखाई और किसान राजी हो गया। लेकिन जैसे ही लोहार दूर गया, लड़का दोबारा इंसान बन गया। यहां से लड़के ने समझा कि ताकत का इस्तेमाल सोच समझ कर करना जरूरी है। मगर लोहार और बेटे ने जादूगरनी की नसीहत को मुकम्मल तौर पर नहीं माना। रास्ते में लालच में आकर वो ऊंट और दीगर जानवर भी बन गए और ये सब कुछ जादूगर के इल्म में आ गया। जादूगर ने फौरी तौर पर अपना रूप बदला और उनके पीछे आ गया। लड़का हर बार नए रूप इख्तियार करके जादूगर को चकमा देता रहा। कभी वो कबूतर, कभी बाज, कभी बैल आ ऊंट में बदल जाता। जादूगर भी अपनी चालाकी से पीछा करता। ये खेल न सिर्फ जिस्मानी बल्कि ज़हनी था। हर लम्हा होशियारी और जादू की आजमाइश थी। रास्ते में वो एक गांव के करीब पहुंचे जहां औरतें अपने घरों की सफाई कर रही थीं। लड़के ने फौरी तौर पर छोटा जादू इस्तेमाल किया और अपने आप को छोटे छोटे अशिया में बदल दिया ताकि जादूगर उनके करीब ना आ सके। यहां से इसने समझा कि हर ताकत के साथ अक्ल और मंसूबा बंदी जरूरी है। बिलाखिर लड़का लोहार के साथ शहर के करीब पहुंचा। यहां वो जादूगरनी के दिए सबक के मुताबिक अपना आखिरी जादू करने वाला मंसूबा बनाता है। बादशाह की शर्त पूरी करने के लिए इसका हर अमल न सिर्फ खतरनाक बल्कि चालाकी से भरपूर था। ये सीन लड़के के लिए अहम मोड़ था। जादूगरनी की तालीम, वालिद की मदद और अपनी होशियारी के इम्तिजाज से वो खतरनाक रास्ते में जिंदा रहा, आजमाइशें पार की और अगले मरहले के लिए तैयार हुआ। बादशाह के सामने अपनी शर्त पूरी करना और शहजादी का रिश्ता जीतना। लड़का और लोहार आखिरकार शहर पहुंच गए। अब सबसे बड़ा लम्हा आ गया था, बादशाह के सामने शर्त पूरी करना। दोनों ने दिल में हौसला और होशियारी रखी क्योंकि अब गलती का कोई मौका नहीं था। लड़के ने याद किया कि जादूगरनी ने इसको हर सबक क्यों सिखाया था। सिर्फ ताकत नहीं बल्कि अक्ल और मंसूबा बंदी भी कामयाबी की कुंजी है। दरबार के सामने पहुंचते ही लोहार ने सर झुकाया और बेटे को आगे बढ़ने का इशारा किया। बादशाह तख्त पर बैठा और उसके चेहरे पर हैरत और गुस्से का मरकब था। वज़रा दाएं बाएं खड़े थे और हर किसी की नजरें लड़के पर जिमी थीं। लड़के ने चुपके से छुरी की तरह तेज अपनी तवानाई को महसूस किया और जादू के जरिए कदम बा कदम अपनी ताकत जाहिर करना शुरू की। इब्तिदा में वो छोटे छोटे हैरत अंगेज काम दिखाने लगा। बैल की तरह कुव्वत, कबूतर बनकर हल्की हरकत, फिर बाज की तरह फजा में परवाज। हर अमल ने दरबार में मौजूद लोगों के मुंह खिले छोड़ दिए। बादशाह हैरान था, वज़रा साकित और लोहार की आंखों में फखर और तशवीश दोनों थे। फिर लड़के ने आखिरी जादू दिखाया, एक ऐसा अमल जो ना किसी ने देखा था ना सुना था। वो अपनी असल शक्ल में वापस आते हुए बादशाह के सामने एक जबरदस्त चालाकी और जादू का मुजाहरा करता है जिससे तख्त के सामने मौजूद हर शख्स दंग रह जाता है। बादशाह का चेहरा सुर्ख और आंखें हैरत से फटी हुई थीं। इसने कहा, यह सब कैसे मुमकिन हुआ? क्या तुम वाकई वही लोहार का बेटा हो जिसे मैंने शर्त दी थी? लड़के ने सर झुकाकर जवाब दिया, जी जहां पना, मैं वही हूं। मैंने अपनी तमाम ताकत, अक्ल और हिम्मत से आपकी शर्त पूरी की है। अब आप अपना वदा पूरा करें और शहजादी का रिश्ता मुझे दें। बादशाह के पास कोई रास्ता ना रहा। इसे मजबूरना हाँ करनी पड़ी और शहजादी का रिश्ता लड़के को दे दिया गया। चंद दिन बाद धूमधाम से शादी हुई। लोहार का बेटा बादशाह का दामाद बन गया और फिर वक्त के साथ बादशाह की मौत के बाद तख्त पर बैठकर अपनी हिम्मत और इंसाफ के साथ हुकूमत करने लगा। इस कहानी का असल सबक ये था, ताकत और जारहियत से कुछ हासिल नहीं होता, मगर अक्ल, सब्र, होशियारी और अखलाक से हर मुश्किल आसान हो सकती है।
لڑکے نے اپنے غرور اور ضد کو قابو میں رکھتے ہوئے جادوگرنی کی تعلیم اور اپنے والد کی حمایت سے کامیابی حاصل کی۔ آخرکار لوہار اور اس کا بیٹا، جو کبھی نافرمانی اور غرور میں گرفتار تھا، ایک عظیم کہانی میں تبدیل ہو گئے جس میں ہمت، ہوشیاری، صبر اور اخلاقی سبق واضح طور پر نظر آتا ہے۔ سبق: لالچ انسان کو نقصان دے سکتا ہے۔ طاقت کے ساتھ عقل اور اخلاق ضروری ہے۔ صبر، ہوشیاری اور والدین کی نصیحت ہر مشکل کا حل ہے۔